Okay, so the name of the chapter is Internet Basics, and the first topic is Internet, right? So, children, as we all know, what is a network? नेटवर्क मीन्स द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंबाइन कर देते हैं एक साथ डेटा को शेयर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क, ठीक है? तो वो एक नेटवर्क है. But when I combine these networks, when I collect these networks to share the information, it becomes large network, and that large network is internet. Okay, so internet can be defined as it is the network of networks, or it is the collection of networks publicly accessible from around the world, right? Yes, the next topic is the components. Now what do we mean by components? Components का मतलब क्या होता है? Components means the parts or the devices which are used to connect to form the internet or to access the internet, right? अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो मुझे किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा? सो मेनली आई हैव 6 रिक्वायरमेंट्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज कंप्यूटर सिस्टम, then number 2 is modem, number 3 is telephone lines or cable lines, number 4 ISP, internet service provider, number 5 internet access software, that means the dialer softwares, and the sixth and the last one is browser, right? internet application software. अब हमको ये सारे 6 टॉपिक्स को इंडिविजुअली सीखना है, right? we have to learn all these topics. What do they mean? Okay, first is computer system. So what is the minimum requirement? Computer तो हम सबको मालूम है, electronic machine. This is required obviously, computer or a phone to access the internet, right? तो इसका जो minimum requirement है वो क्या होगा? Minimum 1 GB of RAM and hard disk. So 500 GB of hard disk. Okay, this is the minimum requirement to access the internet in a proper way or in a proper manner. Second requirement is modem. Now what is a modem? Modem का full form होता है modulator and demodulator. Okay, इसका जो function है वो क्या है, क्या करता है ये? It converts the digital signals into the analog signals and analog signals into the digital signals, right? Means ये क्या करता है, जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में बदल देता है उन सिग्नल्स को, सो दैट जो आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं वो टेलीफोन केबल के थ्रू ट्रैवल कर सकें. बिकॉज जो टेलीफोन की केबल है, टेलीफोन वायर है, वो डिजिटल सिग्नल नहीं समझ सकती, एंड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझ सकता. ओके, तो ये मॉडेम एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर से जनरेट हुए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि एनालॉग सिग्नल्स उस उस केबल, जो टेलीफोन केबल है, उस केबल के थ्रू ट्रैवल कर सकें और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जाएगा वो, एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्या करेगा, वाइस वर्सा काम करेगा. ये एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करेगा और उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल सिग्नल्स, राइट? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स. नंबर 1 इज इंटरनल मॉडेम, नंबर 2 इज एक्सटर्नल मॉडेम. From the name itself it is clear, internal modem means it is placed inside the CPU. ये एक built-in modem होता है, right? जो कि CPU के अंदर already होता है, as we can see in the laptops, tablets, etc. Next is external modem. ये external modem क्या होता है? ये एक box shape का device होता है, right? जैसे हम TV केबल देखते हैं तो हम set top box होता है, same way हमारा modem होता है, right? Now ये एक small box के जैसा होता है which is placed outside your CPU, right? The third component is telephone cable or the cable line. Cable wires which are required for the internet connection. If you don't have a telephone connection, then landline telephone connection, then we will not be able to access the internet, right? The fourth one is ISP. Now what is the ISP? It means internet service provider. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग नाउअडेज वेराइटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेराइटी ऑफ सिम्स यू हैव, एयरटेल सिम, आइडिया सिम, जियो सिम. सो ऑल दीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग अस इंटरनेट फैसिलिटी, सो दे आर कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, सो द कंपनी विच प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द इंटरनेट इज कॉल्ड ISP. Fifth is
Internet Access Software. Now, what is Internet Access Software? This software is very much necessary to set up the connection for the internet, right? ये हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम उसको इंस्टॉल करते हैं ताकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएं, राइट? इसके अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. नंबर 1 इज डायलर सॉफ्टवेयर. ओके, सो डायलर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये जो मॉडेम है उसका जो टेलीफोन नंबर है उसको डायल करके, मॉडेम के थ्रू टेलीफोन नंबर को डायल करके आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो कंप्यूटर होता है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि अभी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन से, इट डायरेक्ट्स द मॉडेम टू डायल द टेलीफोन नंबर और द कनेक्शन टू गेट द इंटरनेट सर्विसेज एट योर सिस्टम, राइट? सो इसके लिए व्हाट डू वी नीड? दे गिव अस द पासवर्ड एंड द यूजर नेम. पासवर्ड और यूजर नेम के जरिए क्या होता है, जो आईएसपी का कंप्यूटर होता है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो कंप्यूटर होता है वो हमारे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट कहां से आई है, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से आई है. क्लियर? सो इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. नेक्स्ट इज टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर. दूसरा जो इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर है वो क्या है? टीसीपी आईपी. टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक, ये क्या करता है? इट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट और इट अलाउज द प्रोग्राम, राइट? इट अलाउज द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, डायलर सॉफ्टवेयर ने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, तो अब हम अपने कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक्सेस करनी है इंटरनेट के थ्रू उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. तो वो चीज में हेल्प कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा? टीसीपी आईपी. सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज ब्राउजर. ब्राउजर का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. इट इज द सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू एक्सेस द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड द वेब पेजेस. We all are having so many kinds of web browsers in our phones. UC browser you people use, Chrome browser you use, right? So any type of a software which you like and you want to install on your computer or a mobile phone to access the internet information, जो भी इंटरनेट पे है उसको एक्सेस करने के लिए जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अ ब्राउजर.